اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کا سبق ہے ہمارا آیت نمبر 113 تک۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ودا اور چاہتے ہیں، کثیر بہت زیادہ، من اہل الکتابی اہل کتاب، لو کاش کے، یردونکم وہ تمہیں پھیر ڈالیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفار کفر کی حالت میں، حسدن یہ حسد کرتے ہیں، من عند انفسہم اپنی جانوں میں، من بعد ما تبینہ اس کے بعد جو کہ واضح ہوا ہے، لہم ان کے لیے، الحق حق، فاعفو آپ درگزر کیجئے، فاعفو معاف کیجئے، وصفحو درگزر کیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالی بامرہ اپنا فیصلہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کی یہی خواہش ہے کہ وہ مسلمانوں کو پہلے کی طرح کافر کر دیں، اور وہ اپنے مذہب میں واپس پلٹانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ میرے نبی، میرے صحابہ اکرام، میرے نبی کے صحابہ اکرام، آپ کیا کیجئے، معاف کرو، درگزر کرو، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہیں نازل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے، من خیر بہتر عمل، تجدوہ تم پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور جو بھی تم نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن تم پاؤ گے، کیونکہ اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا اس کے بندے کیسے عمل کر رہے ہیں۔ وقالوا وہ کہتے ہیں، لن يدخلوا الجنت ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں کوئی بھی، الا مگر من کانا جو کوئی ہوگا، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تلک امانیہم یہ ان کی آرزویں ہیں، قل ہاتو کہہ دو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی انسان، ہاں جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا وہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی اپنی ہی آرزویں ہیں، اپنی خواہشات ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی بھی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہو کہ اگر واقعی جنت تمہارے لیے ہے تو تم کوئی دلیل لے کر آؤ، بلا بلکہ، من اسلم جو کوئی متی کرے گا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ رب العالمین کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہوگا، فلہ تو اس کا اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس ضرور ہوگا، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ جو بھی نیک عمل کرے گا، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے مطیع و فرمانبردار کر لیا، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے ہر عمل کا بدلہ ہوگا، قیامت کے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء ہم کسی بھی قیمت پر نہیں عیسائی ہو سکتے، وقالت النصارى کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود کہ نہیں ہے وہ یہودی، علی شیء کسی بھی قیمت پر، وہم یتلون الکتاب اور یہ دونوں فرقے ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم جو جیسے یہ کہتے ہیں ان کی بات کی طرح، فاللہ پھر اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان سب کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون جس معاملے میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم عیسائی نہیں ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم یہودی نہیں ہیں، حالانکہ دونوں فرقے ہی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور
इसी तरह इनसे पहले भी जितने लोग आए थे ना, वो कहते थे हम नहीं पहली उम्मतों को मानने वाले। अल्लाह ताला इन सब के दरमियान क़यामत के दिन फैसला करेगा, और जिसमें ये इख्तलाफ करते फिरे क़यामत के दिन सब पता हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा कि क्या हक़ है, क्या सच है, क्या हक़ है, क्या बातिल है। आइए अब तफसीर की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला पहली आयत में 109 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अहले किताब की आरज़ू क्या है। वो कहते हैं कि मुसलमान अपने मज़हब से पलटकर वापस यहूदी ईसाई हो जाए। और ये क्यों करते फिर रहे हैं? ये हसद है, उनके दिलों के अंदर जो हसद और बुग़्ज़ अदावत है ना, ये है। तो मुसलमानों को तंबीह की जा रही है कि तुम यहूदियों की तरह, तुम यहूदियों से जो है ना दोस्ती मत रखो। यहूदियों को इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हसद और अनात था, इसकी वजह से वो मुसलमानों को दीन इस्लाम से फेरने की मज़मूम कोशिश करते रहते थे। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम सब्र और दरगुजर से काम लेते रहो, इन अहकाम और फ़राइज़ इस्लाम को बजा लाते रहो जिनका अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। जब तक अल्लाह ताला तुम्हें कोई हुक्म नहीं देता, तुमने कुछ भी नहीं करना। मतलब ये कि जब तक अल्लाह ताला जिहाद का हुक्म नाज़िल नहीं करता, तुम क्या करो, जो तुम्हें अमल का, नमाज पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो, और वालिदैन से उसने सलूक करते रहो, लोगों को नेकी की दावत देते रहो। तो जिहाद, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आ जाता। और ये यहूदी क्या कहते थे? ये कहते थे कि जन्नत में सिर्फ हम जाएंगे। ये उनकी अपनी आरज़ू थी। अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत में तो वो ही जाएगा जिसने अपने आप को अल्लाह के लिए मतीयो फरमा बरदार कर लिया। अहले किताब के इस गुरूर और फरेब और नफ्स को फिर बयान किया जा रहा है जिसमें वो मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये महज उनकी आरज़ुएं हैं जिनके लिए उनके पास कोई दलील मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के यहाँ तो कामयाब वो ही है मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, कि जिसने अपने आप को अल्लाह के लिए मतीयो फरमाबरदार कर लिया। अल्लाह की रज़ा के लिए वो जो काम करे, मतलब ये कि इखलास के साथ पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर की सुन्नत के मुताबिक अमल करे। अमल की कबूलियत के लिए ये दो बुनियादी असूल हैं कि आखिरवी नजात इन्हीं असूलों के मुताबिक किए गए अमाल साले पर मबनी है, ना कि महज आरज़ुओं पर और ना ही बिदात पर, यानी बुरे जो बिदात खुद घड़े हुए अमल हैं उनके करने पर हमारी नजात नहीं हो सकती। किन के मुताबिक हमारी नजात होगी? एक, इस्लाम लाने के बाद अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना है, और सुन्नत, दूसरा सुन्नत के मुताबिक अमल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने ऐसा अमल किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया वो मरदूद अमल है, वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो दीन अल्लाह के लिए खालिस है। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह फरमाते हैं उन्हें हुक्म दिया गया कि अल्लाह की इबादत करो, खालिस अल्लाह के दीन को अपनाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करो। जब तक अमल अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। यहूदी कहते थे कि हम ईसाई नहीं हैं, ईसाई कहते थे हम यहूदी नहीं। इसकी क्या वजह है? यहूदी तौरात पढ़ते हैं जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से हज़रत ईसा की तस्दीक मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद यहूदी हज़रत ईसा की तकफीर करते थे। ईसाइयों के पास इंजील मौजूद है जिसमें हज़रत मूसा और तौरात के मिन इंदिल्लाह होने की तस्दीक मौजूद है। इसके बावजूद ये यहूदियों को काफिर कहते हैं। ये गोया अहले किताब के दोनों फ़िरकों के कुफ्र व अनाद और अपने अपने बारे में खुश फहमियों में जो वो मुब्तला हुए बैठे हैं उसका इजहार किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनसे पहले लोग भी जो थे वो भी इसी तरह कहते थे कि हम जो है ना जो पहली उम्मतें हैं हम उनको नहीं मानने वाले। अहले किताब के मुकाबले में अरब के मुशरिकीन अनपढ़ उम्मीयीन थे, इसलिए उन्हें बेइल्म कहा गया, लेकिन वो भी मुशरक होने के बावजूद यहूदो नसारा की तरह इस बातिल अज़म में मुब्तला थे कि वही हक पर हैं। इसीलिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबी यानी बेदीन कहा करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कल क़यामत का रोज़ आएगा, अल्लाह ताला सब में फैसला करेगा कि उन्हें फिर पता चल जाएगा हक क्या है और बातिल क्या है। तो
आज का सबक इतना ही, आगे इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज के सबक से हमें ये बात समझ आई कि अगर हम जो भी अमल करेंगे, पहले 2 शर्तें हैं उसके लिए। एक वो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए हो, खालिसतन अल्लाह के लिए हो। दूसरा वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो। फिर हमारा वो अमल चाहे वो एक ज़र्रे के मुताबिक ही क्यों नहीं है, एक आधी खजूर के मुताबिक ही क्यों नहीं, अल्लाह वो अपने यहाँ काबिल कबूल करता है। अगर वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अल्लाह के नबी ने उसका हुक्म नहीं दिया, तो अगर वो पहाड़ जितना भी करेंगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।